Hello everyone, this is Amit Kumar Pathak, Faculty of English Literature. I am teaching in Jesus and Mary Academy. Today I am going to read the second poem of Treasure Trove, The Cold Within, written by James Patrick Kinney. Before reading the poem, I would like to uh, read about the poet and a bit background about the poem. James Patrick Kinney, he was an American poet. Uh, he wrote this poem in 1960. Most of his poem was very controversial, and The Cold Within was also a very controversial poem. It gained popularity just after it had been read out in the at a council meeting of all religions. The poet describes the tragic the tragic death of a group of six people who stand around a fire. Each one of them were holding a log of wood, but they refused to share log to fuel the dying fire and keep each other warm. Eventually, the fire dies out, and in the morning, all six of them are found frozen to death, each clutching, even in a death, a log that could have so easily saved their lives if only they had overcome the petty barrier of class, race, and religion that divide them. I hope you understand it. In short, I can say that uh, this poem shares experience how six people who who trapped, who gathered together coincidentally uh, in a very cold environment, and they collected together around a fire. Each one of them was holding a log. The fire was about to die, but none of them had shared their log. Um, and in this way, they all died. The next day, when they all were found in a frozen state, and clutching. Each one of them was clutching a log in their hand. What it shows that um, if we selflessly hold the world's resources, we are all lost at the end. So this was about the poem. Now we'll read line by line and try to understand it. The very first line: the six human trapped by happenstance in bleak and bitter cold, each one possesses a stick of wood, or so their story is told. The very first line says that six humans. How many numbers of people? There are six who caught together in a bleak and bitter cold. यानी कि environment was so cold, it was everyone was shivering, quivering due to cold. मौसम काफ़ी ठंडा था, काफ़ी, and everyone possesses a stick of wood. That means every person out of all six humans, everyone was having a log of wood, यानी एक लकड़ी का एक लकड़ी थी उनके पास. They are dying fire in need of logs, but the first one held her back. Now they all gathered somewhere where there was fire set. फायर यानी कह सकते हैं आपकी पहले से ही कुछ जल रहा था. एंड द फर्स्ट वन, ऑल द सिक्स ह्यूमंस में जो द वेरी फर्स्ट पर्सन थे, शी हेल्ड हर लॉग बैक एज द फायर वॉज अबाउट टू डाई. मतलब आग बुझने ही वाली थी, बट द वेरी फर्स्ट लेडी, शी हेल्ड हर लॉग बैक. उसने अपने लकड़ी को पीछे खींचे बजाय से कि वो उसमें उसको डाइंग फायर में दे सके. शी हेल्ड हर लॉग बैक बिकॉज शी नोटिस्ड वन अमंग ऑल वॉज ब्लैक. यानी कि उन छः में से एक व्यक्ति ब्लैक था. तो इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ, और इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. यानी आप यूरोप में, अमेरिका में, यू माइट हैव अमेरिकन रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा.
या यूरोप में भी आप जानते होंगे कि कलर कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पे अफ्रीका में भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, यानी ब्लैक्स और वाइट के बीच में। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है, जहाँ वन ऑफ द women held her log back, rather giving her log in a dying fire, she held it back because she found that one of the people among all is black. Now, the next one. The next man looking across the way and saw one knot of his church. The next man, just after the lady, the next man again held his log back. Rather than sacrificing it to the dying fire, he held it back because among all the 6 men, one was not belongs to his church. यानी 6 में से दूसरे ने भी अपने लॉग को नहीं दिया, बिकॉज उसने देखा कि उन 6 में से एक व्यक्ति जो है वो उसके चर्च का नहीं है। चर्च का नहीं होने का मतलब क्या है? क्रिश्चियंस आर डिवाइडेड इनटू कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो कैथोलिक चर्च की परंपराएं अलग हैं, प्रोटेस्टेंट्स की अलग हैं, एंड दैट इज़ वाई second man held his log back because he found that one of the man among all 6 was not belongs to his church. The third man sat in a tattered clothes. Tattered का मतलब क्या होता है? Tattered का मतलब होता है फटा हुआ. So the third man sat in a tattered clothes, यानी वो बैठा हुआ था, his clothes was tattered. He gave his coat a hitch. उसने अपने कोट को hitch दी. Hitch का मतलब क्या होता है? To pull something. ठीक है, टू पुल समथिंग अक्रॉस और टू अपसाइड। ठीक है, तो उसने अपने कोट को हिच दिया। कई बार हम अपने जैकेट के चेन को ऊपर खींचते हैं, दैट इज कॉल्ड हिच। व्हाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज टू वार्म द आइडियल रिच? नाउ ही हैज ऑल्सो नॉट सैक्रिफाइड हिज लॉग बिकॉज what he has thought, why should I sacrifice my log just to warm an ideal rich? यानी what he has found that among all 6 there is a rich man, एक अमीर आदमी था और ये चूंकि गरीब था, so he has decided कि मैं अपने लॉग को क्यों sacrifice करूं just to warm a rich man, किसी एक अमीर आदमी को warm करने के लिए in a bitter or bleak cold. सो इन दिस वे आपने देख लिया कि तीन लोगों के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि वी हैव रेड अबाउट नॉट ओनली अबाउट द 3 पर्सन, रादर ऑल अबाउट द 6. कैसे? तो चूंकि फर्स्ट वाले केस में एक विमेन, पहला जो एग्जाम्पल था इट वॉज ऑफ अ विमेन जिसने अपने लॉग को सेक्रीफाइस करने से मना किया बिकॉज शी हैज़ फाउंड अ ब्लैक वन. तो 2 लोग हो गए, एक विमेन, दैट मीन्स शी वॉज अमंग द और शी बिलोंग्स टू वाइट रेस, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन उसका ब्लैक के साथ था. द अदर मैन हु फाउंड दैट अमंग ऑल 6 एक व्यक्ति जो है हु डज नॉट बिलोंग्स टू हिज चर्च, तो दैट मीन्स क्रिश्चियन कम्युनिटी में 2 लोग हैं, एक प्रोटेस्टेंट से बिलोंग करता है और एक कैथोलिक से बिलोंग करता है. इन दिस वे द 4 हो गए. और द लास्ट एक आइडियल है, यानी एक रिच है और एक आइडियल रिच है और एक दूसरा पुअर है. तो इस तरह से 6, यानी कि ब्लैक वाइट के डिफरेंसेस हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, पुअर और रिच का डिस्क्रिमिनेशन है, और विद इन द रिलीजन जो सब डिवीज़न होता है कास्ट का, और यू कैन से दैट कि उनके भी जो भी सब डिवीज़न है उसका. ठीक है, तो इस तरह से 4th पर्सन जो है, यानी कि जस्ट ऑपोजिट वाले को हम देखेंगे. द रिच मैन हैज ऑल्सो सेट बैक, ही हैज नॉट डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस हिज लॉग बिकॉज व्हाट ही फाउंड, व्हाई आई शुड सैक्रिफाइस माई लॉग जस्ट टू हेल्प अ लेजी सिफलेस पुअर. अब रिच ने भी यही सोचा कि मैं अपनी लकड़ी क्यों सैक्रिफाइस करूं, जस्ट टू हेल्प अ पुअर, जस्ट टू वार्म अ पुअर. जिस तरह पुअर ने सोचा कि मैं अपने लकड़ी को क्यों दूँ एक अमीर व्यक्ति को बचाने के लिए, अमीर का भी वही सोच था कि मैंने इतना मेहनत करके अर्न किया है सो मच वेल्थ, तो वाई शुड आई सैक्रिफाइस माई लॉग टू वार्म अ पुअर. द ब्लैक मैन फेस bespoke रिवेंज, और बिल्कुल उसी तरह ब्लैक मैन ने भी देखा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक बैक द रिवेंज फ्रॉम अ वाइट पर्सन. वाई शुड आई सैक्रिफाइस माई लॉग just to warm a white? It is a very good time to take back
अ रिवेंज फ्रॉम द वाइट। यहाँ एक शब्द है वॉज अ चांस टू स्पाइट द वाइट। स्पाइट का मतलब क्या होता है? फीलिंग अ नीड टू सी अदर्स सफ़र। ठीक है, यानी कि आपकी इच्छा होती है कि आप दूसरों को सफ़र करते हुए देखें। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट स्पाइट। सिनोनिम्स का सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो होगा स्पाइट। मीनिंग स्पाइट का फीलिंग अ नीड टू सी अदर्स सफ़र। This last second paragraph, the last man of this fallen group did not accept for gain, giving only to those who gave was how he played the game. और the last man जो था यानी opposite of the man who held his log back because he found that one of the man was not belongs to his church, तो उसका opposite ये है। और ये कहता है कि why should I sacrifice my log because none of them has sacrificed, so I gave only to those, मैं उसी को दूंगा, one who will गिव इट टू मी, यानी कि जो मुझे कुछ फ़ायदा देगा या जिससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा मैं उसे ही कुछ दूंगा। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ ही प्लेड द गेम। एंड द लास्ट पैराग्राफ, this is the very important paragraph, or it is a lesson as well. Their holds held tight in this still hand was proof of a human scene. What has happened? All the logs ultimately the next day when they all found frozen, यानी पूरी सबकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी, लॉक्स वॉज स्टिल क्लच्ड इन देयर हैंड, और जो लकड़ी का ढांचा था वो उनके हाथों में अभी भी क्या था, उन्होंने जा करके उसको पकड़ के रखा था इन द फीस्ट, मुट्ठी में। दिस इज द लेसन, द लास्ट टू लाइन, दे डिड नॉट डाई फ्रॉम द कोल्ड विदाउट, दे डिड नॉट डाई, उनकी मौत इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि बाहर ठंड थी, दैट मीन्स इन्वायरमेंट में, आउटसाइड देयर बॉडी। दे डाइड, उनकी मौत हुई बिकॉज द कोल्ड विद इन, उनकी मौत इसलिए हुई क्योंकि जो उनके विद इन का मतलब इनसाइड होता है, जो उनके दिल में, हृदय में एक दूसरे के लिए जो ठंड थी, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन। दे डिड नॉट लाइक टू हेल्प अदर्स, सेव लाइव्स ऑफ अदर्स। तो ये जो उनके अंदर जो करवाहट थी, इस वजह से उनकी मौत हुई। दिस वॉज द पोएम। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, if you have any problem, you should contact me, you should message me. I hope you are having a good time. Please like and subscribe our school channel. That will ultimately वो हमें मैसेज देता है कि आप जो है वो हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, और इससे हम लोग बूस्टअप होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको और अच्छे तरीके से, दो वी आर गिविंग आवर बेस्ट, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि और अच्छा करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।